So let's begin with our today's session. Have you prepared your Moodle site? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस Moodle site Yes, ma'am. Okay, Moodle site creation में किसी को कुछ दिक्कत है? Then change of password. Have you changed your No, ma'am. existing password? No, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, आई हैव चेंज्ड। Okay. So now let's begin with our second step or next step. Let me share my screen. आज और कल अपन पूरा Moodle site creation plus online course designing, that concept we are going to study today and tomorrow, so that you can submit your Moodle site for gradation of 20 marks, जिसके आपको 20 marks है Moodle site creation पे और अपना कोर्स डिजाइन करने के ऊपर। तो आपको पॉजिटिवली आज जितने भी स्टेप्स मैं बताती हूँ in afternoon, because you are having session till 12:30 only, because I have given I have to give sufficient time for creation because many of you are new to this. Maybe there are some participants who have already attended these sessions of Moodle and they have their own Moodle site along with their online course. But still for this program, you have to create another Moodle site and you have to add your particular online course in that site. Now friends, next step, just to note down the heading, steps for changing admin's profile or editing admin's profile. Can you see my PPT? Yes. यस मैम। Yes. I will explain in Hindi and English. If Marathi participants, if you feel any difficulty, you please unmute yourself and clarify your doubts. No doubt, उस दिन अपने sessions हुए थे Moodle के, but those were the briefing sessions. इतने जल्दी, इतने fast इसमें आप लोग समझ नहीं पाते हैं because it is a new concept. इसीलिए अपने को अभी एक एक स्टेप धीरे धीरे पढ़नी है सारी चीजें with concept. Because technical part comes later, before that you have to clear your concepts. कब कौन सी स्टेप परफॉर्म करनी है ये अपने को पहले समझ में आना चाहिए, फिर टेक्निकल स्टेप्स तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सो देखिए, इसके पहले अपन ने जो भी चीजें पढ़ी है, फर्स्ट वी हैव गॉन थ्रू genomio.com and there we have entered your respective site name and you have created your own site. That means site creation is nothing but I always compare offline teaching along with online teaching. Whatever course you want to launch, for that you should have some infrastructure. कोई भी कोर्स लॉन्च करने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी होता है, कॉलेज होना जरूरी है, क्लासरूम्स होना जरूरी है। सो लाइक दैट ऑनलाइन कोर्स रन करने के लिए भी आपको एक जगह लेना जरूरी है एंड दैट स्पेस इज नथिंग बट योर Moodle साइट। आपने अभी ऑनलाइन क्लाउड पे आपकी एक जगह ले ली है जहां पे आप अपने कोर्सेज को लॉन्च करेंगे और बच्चों को इनवाइट करेंगे उस कोर्सेज को सॉल्व करने के लिए। सो साइट क्रिएशन इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज नथिंग बट द ओपनिंग ऑफ योर कॉलेज। आपने अभी कॉलेज की जगह ले ली है अपने क्लाउड में बाय योर साइट नेम and you are the admin of that particular site, administrator. There are 3 stakeholders in the Moodle site. Concept you have to understand. Madhura madam, please mute yourself. So there are 3 stakeholders in the Moodle site. One is the administrator. Stakeholders म्हणजे ही साइट जो व्यक्ती यूज करणार आहे याचे जे कोणी यूजर्स है, दीज आर नथिंग बट द स्टैक होल्डर्स। या तो 3 यूजर्स के नाम उन्होंने दिए। यूजर्स मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन जो इस साइट को यूज करेगा। वो यूजर कोई भी हो सकता है। ही और शी कैन बी एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर एंड लर्नर्स। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। 3 वर्ड्स आर नथिंग बट एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर एंड लर्नर। लर्नर मतलब अपने लैंग्वेज में स्टूडेंट्स। तो अभी आपने साइट क्रिएट किए हैं, मतलब आप उस साइट के एडमिनिस्ट्रेटर है और आप उस साइट में कहीं पे भी घूम सकते हैं। सारे टैब्स आप लोगों के लिए ओपन रहेंगे बिकॉज यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर। वो आपकी खुद की साइट है, आपका खुद का कॉलेज, ठीक है। लेकिन जब आप कोई टीचर को एनरोल करते हैं अपने साइट में या तो स्टूडेंट को एनरोल करते हैं अपने साइट में, तो उन लोगों को कुछ रेस्ट्रिक्टेड
कमेंट्स ही या तो रेस्ट्रिक्टेड टैब्स ही दिखेंगे, because they are not having all the rights to go into that particular site. So depending upon the restrictions and the availability of different tabs, there are three stakeholders: administrator, teacher, and learner. Learner is nothing but your student. So we will develop our online course as a administrator, because you people are having your own individual site. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि अभी टाइम पे हम कौन सा ऑनलाइन कोर्स डिजाइन करेंगे ये 2 दिन में. सो फॉर प्रैक्टिस पर्पस व्हाट यू हैव टू डू इज, जो पेपर आप लोग अपने कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, द सब्जेक्ट विच यू आर टीचिंग इन योर कॉलेज, either in offline mode or in online mode, you have to convert that subject or that paper into online pattern, or you have to convert or you have to add that paper content into your Moodle site. जो लोग मराठी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और केमिस्ट्री, जूलॉजी पेपर 1 पढ़ा रहे हैं, पेपर 2, सो दैट पेपर इज नथिंग बट योर ऑनलाइन कोर्स. उसी कोर्स को आप लोग ई कंटेंट के फॉर्म में या तो ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो कुछ वर्ड्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं. तो पहले अपन ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज स्टेप्स फॉर एडिटिंग एडमिन्स प्रोफाइल. तो ये जो टास्क है एडमिन प्रोफाइल को एडिट करने का, ये टास्क सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है. सो दिस इज योर थर्ड स्टेप. फर्स्ट स्टेप जो अपन ने पढ़ी दैट इज क्रिएशन ऑफ Moodle साइट. सेकंड स्टेप वी हैव सीन हाउ टू चेंज द पासवर्ड. नाउ गिव थर्ड हेडिंग, स्टेप्स फॉर एडिटिंग एडमिन प्रोफाइल. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिए. जैसे जैसे कंसेप्चुअल पार्ट आएगा आई विल एक्सप्लेन. तो थर्ड स्टेप जो अभी अपन देखने वाले हैं दैट इज स्टेप्स फॉर एडिटिंग एडमिन्स प्रोफाइल. जैसे ही आपने Moodle साइट क्रिएट की होगी, अभी आज आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सो हाउ यू विल स्टार्ट, एनीवन कैन एक्सप्लेन. अगर आपको आपकी Moodle साइट ओपन करनी है तो आप लोग कैसे, फर्स्ट स्टेप आपकी क्या रहेगी, कैसे स्टार्ट करेंगे आप? अभी लैपटॉप अगर बंद है आपका, सो हाउ यू विल गो फॉर दैट Moodle साइट? कोई भी बताइए, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में चलेगा. अगर आपको URL साइट बार का में नाम अपना मैडम टाइप करेंगे अपने, साइट का नाम जो डालना साइट का URL. नेम है. साइट का नाम जो उस दिन आपने क्रिएट करी URL थी, हाँ, येस, हाँ. दॅट साइट नेम यू हॅव टू ऍड इन URL बार. गुगल मध्ये नाही टाकायचं आहे, URL बार मध्ये त्या साइटचं नाव टाकायचं. Then login. Yes, then you will get that small box having user ID and password. सबका अच्छा. यूजर नेम क्या है? Admin. Yes, सबका यूजर नेम फिलहाल एडमिन है और पासवर्ड जो आपने चेंज किया होगा वो. वंस यू लॉग्ड इन टू योर Moodle साइट, देन नाउ नोट डाउन द स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप रहेगी लॉग इन टू योर Moodle साइट. अभी ये जो स्टेप अपन पढ़ रहे हैं कि एडमिन प्रोफाइल चेंज करना है, तो कहाँ पे अपन चेंजेस करने वाले हैं वो समझ लीजिए. देखिए राइट टॉप कॉर्नर पे आपको यहाँ पे एडमिन यूजर दिख रहा है और एडमिन यूजर के बाजू में एक मैन का सिंबल है या तो इमेज का सिंबल है. सो जब ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना नाम दिखना चालू होगा. एडमिन यूजर के जगह पे आपका जो भी नेम है वो अपन चेंज करेंगे. प्लस आपके पास आपका पासपोर्ट साइज इमेज जेपीईजी फॉर्मेट में है, आपको सबको वो कैरी करनी है और वो फोटो अपन यहाँ पे पेस्ट करेंगे या तो जो भी स्टेप्स मैं बताती हूँ. सो व्हाट स्टेप्स वी आर गोइंग टू स्टडी. एडमिन्स प्रोफाइल चेंज करने का कंसेप्ट क्या है? ये जो आपका नाम बाय डिफॉल्ट एडमिन यूजर आ रहा है उसको अपने खुद का नाम देना है और खुद का फोटो यहाँ पे लगाना है. ठीक है, सो दीज स्टेप्स वी आर गोइंग टू फॉलो. फॉर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू. क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, या तो ये जो उल्टा ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे. डे बिफोर yesterday we have gone through this preferences वाला option for changing your password. Now you have to click on, after clicking on this drop down, click on profile. नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन प्रोफाइल. जहां पे भी फास्ट हो रहा है ऐसा लग रहा है तो आप लोग मुझे बीच में रोक सकते हैं. ये स्पीड ठीक है? यस मॅम. फास्ट होत असेल तर सांगाल. नाही ठीक आहे. ओके, ठीक है, इट्स ओके. ओके ओके ठीक है. सो
Next one is clicking on drop down. Then second step is click on profile. प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा, बट यहाँ पे सब ब्लैंक दिखेगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये जो वर्टिकल बार है इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे थोड़ा सा, बिकॉज अभी अपन जो जीनोमियो यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, इट इज अ फ्री वर्जन। यहाँ पे अपने को कुछ पेड चीजें या तो पेमेंट नहीं करना है। तो ये जो इतनी स्पेस आपको खाली दिख रही है ना, इट इज फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज। तो मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा ब्लॉक करके रखा है, या तो फिर आपके मूडल साइट में यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट दिख रही होगी। सो वो वैसे ही दिखते रहते हैं, अलग अलग एडवर्टाइज आते हैं, आप उसको वहां से क्रॉस करके भी बंद कर सकते हैं। तो जैसे ही अपन नीचे पेज को स्क्रॉल करेंगे, और ये समझ लीजिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एडमिन यूजर और एक खाली जगह दिख रही है। तो जब अपन ये स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे उस वक्त आपको यहाँ पे अपना नाम दिखेगा और आपका फोटो दिखेगा। सो फॉर चेंजिंग दीज थिंग्स यू हैव टू स्क्रॉल डाउन दिस पेज। ये पेज को स्क्रॉल करके जैसे ही आप नीचे आते हैं, ये कुछ बॉक्सेस आपको पॉपअप होंगे। दिस बॉक्स, first box consists of option edit profile. So after clicking on that profile option, next click on edit profile. Edit profile पे क्लिक करने के बाद you will get one form और some form जैसे ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे देखिए यूजर नेम सबका जो मैं बोल रही थी दैट इज एडमिन। अभी आज से अगर आपको आपका यूजर नेम चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट मैंने बताया है कि वो हमेशा रहता है एडमिन, जो जीनोमियो से अपने को मिला है। बट आपको लगता है कि फॉर सिक्योरिटी और लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, या तो जो भी चीजें हैं, यू कैन चेंज योर यूजर नेम बाय गोइंग थ्रू दिस एडिट प्रोफाइल टैब। अगर आपकी इच्छा है तो आप यूजर नेम यहाँ से एडमिन हटा के आपका फर्स्ट नेम या तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड आप लोग दे सकते हैं। बट मेरा ऐसा एडवाइस रहेगा कि प्रैक्टिस के लिए आप इसको एडमिन ही रहने दीजिए। बट अगर किसी को लगता है कि आपको चेंज करना है तो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं यूजर नेम। फिर इसी पेज में हूं मैं, यहाँ से अपन नीचे आएंगे, स्क्रोल करेंगे। इसको स्क्रोल करके नीचे आने के बाद ये देखिए आपको कुछ टैब्स दिख रहे हैं, फर्स्ट नेम, सरनेम, ईमेल एड्रेस एंड सो ऑन। आउट ऑफ दैट रेड मार्क आपको जहां पे दिखता है, रेड एस्ट्रिक इज नथिंग बट कंपल्सरी, मॅन्डेटरी किंवा करायचेच आहे ते, कंपल्सरीली त्या फील्ड्स तुम्हाला भरायच्याच आहे, या बाकीच्या फील्ड्स नाही भरल्या तरी चालेल। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम आपका क्या दिया है, एडमिन, और सरनेम दिया है यूजर। इस वजह से ये राइट कॉर्नर पे आपको क्या दिख रहा है, आपका नाम एडमिन यूजर। बट आपका जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो आप लोग यहाँ पे चेंज करिए, सबको करना है। ये फर्स्ट नेम जो भी आपका होगा, आपका सरनेम यहाँ पे डालेंगे, प्लस ईमेल एड्रेस ऑलरेडी अगर एज इट इज दिया है तो वैसे ही रहने दीजिए, एंड डोंट मेक एनी चेंजेस। ठीक है, जस्ट दीज 3 साइट्स और 3 टैब्स यू हैव टू लुक ऑन। एडमिन के जगह पे यूजर नेम भी अपना एडमिन था, बट वो यूजर नेम अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो वो स्मॉल लेटर्स में था। ये यूजर नेम वाला एडमिन वर्ड इज इन स्मॉल लेटर्स। बट यहाँ पे जो उन्होंने फर्स्ट नेम एडमिन दिया है उसका ए कैपिटल है, तो इसको आप पूरा हटा दीजिए, बैक स्पेस करिए और वहां पे आपका पहला नाम डालिए और आपका जो भी सरनेम है, तुमचं नाव, तुमचं आडनाव इथे टाकायचं आहे। ईमेल आईडी तुमचं ऑटोमॅटिकली राहील, सिटी टाउन जो भी आपका है, मेरा यहाँ पे मैंने नागपूर लिखा है। सिलेक्ट अ कंट्री हे ऑप्शनल आहे, पण तुम्हाला जर चेंजेस करायचे असतील तर तुम्ही करू शकता। टाइम जोन हमेशा याद रखना, एशिया ऑब्लिक कोलकाता बाय डिफॉल्ट भी यही रहता है, तो इसमें प्लीज कुछ चेंजेस मत करिए, अदरवाइज स्टूडेंट्स को टाइमिंग अलग अलग दिखेंगे। सो टाइम जोन आपका यही रहने दीजिए, एशिया ऑब्लिक कोलकाता। अभी इसी पेज में हूं मैं, इस पेज को भी और नीचे ले जाएंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम, क्योंकि मुझे यहाँ पे शो करना है वो, तो मैंने यहाँ पे डाला डॉक्टर प्रीति, सरनेम को चेंज किया धार्मिक, और बाकी की चीजें मैंने वैसे ही रहने दी। अभी मुझे क्या करना है, मेरा फोटो अपलोड करना है। तो मैं इसी पेज में हूँ और इस पेज को मैं नीचे ले जा रही हूँ। नीचे जैसे ही आप लोग जाते हैं, आपको यहाँ पे यूजर पिक्चर करके एक टैब दिखेगा। This user picture is having
न्यू पिक्चर ऑप्शन, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक नोटबुक जैसे सिंबल दिख रहा है। तो नाउ यू हैव टू ऐड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज योर डीपी। जैसे अपन व्हाट्सएप का डीपी रखते हैं ना, लाइक दैट यू हैव टू चेंज योर दिस प्रोफाइल फोटो। सो आप लोग पहले ही ये स्टेप करने से पहले ही आपका जो फोटो है ना, उसको एक तो पेन ड्राइव में रखिए, या तो लैपटॉप या तो कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे लाके रख दीजिए। जैसे मैंने मेरा फोटो डेस्कटॉप पे लाके रखा है। तो अभी वो फोटो मुझे यहाँ पे अटैच करना है, जिसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे। वंस यू क्लिक्ड ऑन दैट आइकॉन, कौन से आइकॉन पे क्लिक किया समझ में आ गया? ये न्यू पिक्चर का जो बॉक्स है उसके लेफ्ट कॉर्नर पे आप लोगों को ये बॉक्स दिखेगा, ऐड फाइल्स है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक फाइल पिकर नाम का विंडो ओपन होगा, या तो नया स्मॉल बॉक्स आपको दिखेगा। अगर ये ब्लैंक दिखता है तो आप देखिए ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर थोड़ी चीजें वेरी होगी। यहाँ पे डायरेक्टली किसी को चूज फाइल को ऑप्शन भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर आपको डायरेक्टली चूज फाइल को ऑप्शन आता है तो वेल एंड गुड, बट किसी के कंप्यूटर में ऐसे दिखता है जैसे अभी मेरे स्क्रीन में दिख रहा है, तो उस वक्त आपको क्लिक करना है अपलोड अ फाइल पे। ये लिख लीजिए। आफ्टर दिस, कहाँ पे अपन गए थे पहले, या बॉक्स वरती क्लिक केला आपण। इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद एक नया विंडो आएगा जिसमें आपको क्लिक करना है अपलोड अ फाइल। वंस यू क्लिक्ड ऑन अपलोड अ फाइल, now this inner box will appear where you will get choose file. So next step is click on choose file. चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद जहां पे भी आपका फोटो आपने सेव किया होगा, यहाँ से आप लोगों को वो फोटो लेना है। इट विल बी ऑन योर डेस्कटॉप, हो सकता है डी ड्राइव, सी ड्राइव, या तो योर पेन ड्राइव, कहीं पे भी हो सकता है। जहां पे आपका फोटो है, जैसे मेरा फोटो मैंने डेस्कटॉप पर ही रखा था क्योंकि इजीली उसको अपन ले सकते हैं। तो ये फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन ओपन, और इस फोटो के ऊपर आप लोग डबल क्लिक भी कर सकते हैं। सिलेक्ट योर फोटो, देन क्लिक ऑन ओपन। वो फोटो का नाम यहाँ पे आ जाएगा जिस किसी नाम से आपने फोटो को सेव किया होगा, बट उसका फॉर्मेट होना चाहिए इमेज फॉर्मेट, दैट इज जेपीजी फॉर्मेट ही होना चाहिए। वर्ड मध्ये वगैरे जर फोटो असेल तो वो फाइल वो सेव नहीं करता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता है रादर। सो दैट फोटो शुड बी इन योर इमेज फॉर्मेट और जेपीजी फॉर्मेट। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन अपलोड दिस फाइल। अपलोड दिस फाइल पे क्लिक करेंगे, जो भी फोटो होगा वो पहले इस बॉक्स में दिखेगा। स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। बहुत बार क्या करते हैं फ्रेंड्स, बच्चे की यहाँ पे फोटो दिख गया तो यहाँ से बैक चले जाते हैं, इसका मतलब स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। जब तक आप इसको नीचे स्क्रॉल नहीं करेंगे और सेव का ऑप्शन आएगा, आई एम स्क्रोलिंग डाउन द पेज, यू हैव टू क्लिक ऑन अपडेट प्रोफाइल। लास्ट स्टेप आपको करनी है अपडेट प्रोफाइल। वंस यू क्लिक ऑन अपडेट प्रोफाइल, सी चेंजेस आप लोग अभी खुद देख सकते हैं। इनिशियली यहाँ पे क्या दिया था, एडमिन यूजर, आई हैव चेंज दैट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम टू माई नेम, दैट इज डॉक्टर प्रीति धार्मिक। और यहाँ पे जो खाली जगह थी इमेज ऐड करने के लिए, वहां पे मैंने मेरा फोटो ऐड कर दिया है। जैसे आप लोग भी आपका फोटो और नाम यहाँ पे चेंज करेंगे। So this is about how to update or edit admin's profile. If you have any query, you can ask. ये steps. मैम, Yes. मैम वो कितना पिक्सल का चाहिए फोटो? कभी बार ऐसा भी हो सकता है कि वो इतने साइज में चाहिए, ऐसा सर बताना है। जनरली जो अपना पासपोर्ट साइज होता है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि 200 KB या तो बिलो दैट और मोर देन दैट, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। बट अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो इजीली एक्सेप्ट हो जाता है। ओके, ठीक है। और अभी फिलहाल किसी के पास आपका फोटो नहीं होगा तो जो भी अपने पिक्चर्स में फ्लावर की इमेज या तो फ्रूट की इमेज है वो भी आप प्रैक्टिस के लिए डाल के देख सकते हैं। ओके। रिसाइज का ऑप्शन है क्या मैम वहाँ पे? नहीं, यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन नहीं है सर, डायरेक्टली अपलोडिंग होता है। ओके ठीक है। ओके। एनी क्वेश्चन,
कर पाएंगे आप लोग ये स्टेप? श्योर मैम। ओके, बाकी हाँ बिल्कुल। मराठी वाले पार्टिसिपेंट्स करू शकाल का ह्या स्टेप्स? हो मॅडम. ओके, ठीक है. नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. वीडियो सेंड करेंगे ना? यस यस यस, ये अपना रिकॉर्डिंग मैंने चालू किया है, वो रिकॉर्डिंग देख देख के भी आप लोग स्टेप्स कर सकते हैं. ओके मैम, ठीक है, चलिए आगे के स्टेप में बढ़ते हैं. जहां पे भी लग रहा होगा कि स्पीड ज्यादा हो रही है, फास्ट हो रहा है, तो मुझे प्लीज बताइए. नाउ मैम विल यू शेयर इट मैम? yes yes, I will share this PPT as well as our current recording also. थैंक यू. Okay, चलिए वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. तीसरी स्टेप हो गई है अपनी. अभी अपना एक्चुअल काम चालू करते हैं, दैट इज क्रिएशन ऑफ न्यू कैटेगरी एंड कोर्स. बीच में एक स्टेप है रजिस्ट्रेशन ऑफ साइट, तो वो मैं बाद में बताती हूँ बिकॉज दैट इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, आज का और कल का ही दिन है. तो मुझे ये जो एक्चुअल चीजें हैं जो एक टीचर को पता होना जरूरी है वाइल यूजिंग मूडल साइट, वो मुझे कवर करना है. और लास्ट में अगर कल टाइम मिलता है तो कुछ मैं एडवांस पार्ट भी उसमें ऐड करने की कोशिश करूंगी. पहले अपना जो मेन पार्ट है वो अपन कंप्लीट करते हैं. सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. सो गिव हेडिंग. फोर्थ अपनी स्टेप रहेगी स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग कोर्स कैटेगरी. नाउ फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग टू द टेक्निकल पार्ट, प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. There are two words. One is category, other is course. Now, always people make confusion here, and actually course create करना या तो site create करना is not a big deal, वो आप लोग कर सकते हैं. But उसको अच्छे से फ्रेम करना, ऑर्गेनाइज्ड वे से क्रिएट करना, वो आपको पहले समझ में आना चाहिए. काही पण हॅपहजार्ड कुठूनही घेतलं, कुठे पण टाकून दिलं असं नका करू. पहिले याच्या मागचा कन्सेप्ट समजून घ्या. यहाँ पे एज फार एज अवर मूडल साइट इज कंसर्न, मतलब मैंने जो मेरा परसेप्शन है उसको ऑर्गेनाइज्ड वे से देखने का, वो मैं शेयर कर रही हूँ कि कैटेगरी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मूडल ने आपको एक कैटेगरी प्रोवाइड की है एंड दैट कैटेगरी इज नथिंग बट मिसलेनियस. मिसलेनियस के नाम से आपको एक कैटेगरी दी है. ठीक है, और जो आप कोर्स डिजाइन करेंगे वो बाय डिफॉल्ट मिसलेनियस कैटेगरी में जाता है. बट मुझे मेरे पेपर को और सिस्टमैटिकली उसको अगर व्यू करना है या तो बच्चों को व्यू करने के लिए देना है, तो मैं एक टीचर 2 पेपर्स पढ़ा रही हूँ. एक पेपर में सेम 1 के बच्चों को पढ़ाती हूँ और एक पेपर अगर मैं सेम 3 के बच्चों को पढ़ाती हूँ. मतलब आपके पास ऑडियंस 2 अलग अलग ग्रुप के हैं, सेम 1 के बच्चे हैं और सेम 3 के बच्चे हैं. तो मुझे उनको उनका ही रिस्पेक्टिव पेपर अगर शो करना है या तो वो सेमेस्टर वाइज अगर मुझे सारी चीजें अरेंज करनी है, तो अपने केस में एज अ टीचर फेटर्निटी वी आर हैविंग 2 कैटेगरीज. सेमेस्टर 1 इज योर 1 कैटेगरी एंड सेमेस्टर 3 विल बी योर 2nd कैटेगरी. और उस सेमेस्टर 1 में जो पेपर आप पढ़ाते होंगे दैट पेपर विल बी कॉल्ड एज योर कोर्स. So you have to understand the word or meaning of 2 words. What do you mean by course and what do you mean by category? समझने के लिए फिलहाल कैटेगरी का मतलब आप समझिए कि किस सेमिस्टर में आप पढ़ा रहे हैं, कौन से सेमिस्टर का वो पेपर है, दैट सेमिस्टर इज कॉल्ड एज कैटेगरी. और जो पेपर आप लोग पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो केमिस्ट्री इज योर सब्जेक्ट. आप केमिस्ट्री के नाम से कोर्स नहीं बनाएंगे. इट इज पता है कि आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप पेपर कौन सा बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, तो वो आपका कोर्स हो गया या तो पेपर हो गया. और किस सेमिस्टर का वो पेपर है, वो सेमिस्टर आपकी रहेगी कैटेगरी. तो मुझे ये बताइए, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्स एंड कैटेगरी? यस यस मैम. ठीक है, यस. एनीवन, आप अपना एग्जाम्पल लेके मुझे बताने की कोशिश करिए. कोई भी सब्जेक्ट का पार्टिसिपेंट हो, आप थोड़ा सा मुझे 2 मिनट में बताइए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपका सेमेस्टर कौन सा है, तो उसमें कैटेगरी कौन सी रहेगी और कोर्स कौन सा रहेगा.
कोई भी बताइए। Ma'am, my subject is microbiology. So Yes. semester 1, semester 2, 3, this Yes. will be the courses. No. Semester 1, It's semester category. 2 will be your category. Yeah. ठीक है, और वो Okay. सेमेस्टर 1 का आप कौन सा पेपर पढ़ाते हैं? मेडिकल Yes. माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, Yes, ma'am. That will ठीक be है, the courses. दैट विल बी योर कोर्स। इसलिए मैं स्टेप्स बताने के पहले ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। एनीवन, किसी को और बताना है अपने तरफ से? ये कंसेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. For example, my subject is English, and the Yes. course is criticism. या Okay, and category is the semester 5th literary criticism. यस, समझ में आ गया? Yes. ओके। Yes, तो ma'am. अपन, हाँ, बाकी भी लोग, अगर आपके कंसेप्ट थोड़े से आपको लग रहा है कि ये कठिन वट्टा है, मराठी वाले पण पार्टिसिपेंट्स जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे, वो लोग भी आप लोग मेरे से डिस्कस करिए, ठीक है। नाउ वी विल फर्स्ट मूव ऑन टू हाउ टू क्रिएट कैटेगरी। मूडल ने आपको एक कैटेगरी दी है ऑलरेडी। क्या नाम है उस कैटेगरी का? Miscellaneous. Miscellaneous. मिसलेनियस। बट अभी जो मैं पेपर डिजाइन करूंगी या तो कोर्स डिजाइन करूंगी, वो मुझे मिसलेनियस में नहीं करना है, मुझे सेमेस्टर वाइज करना है। तो पहले मैं अभी मिसलेनियस को छोड़ दूंगी। आई विल क्रिएट माई ओन कैटेगरी, ठीक है। अभी अगर हमारे HRDC की बात करते हैं तो वी आर हैविंग फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, पहली कैटेगरी, रिफ्रेशर कोर्स दूसरी कैटेगरी, शॉर्ट टर्म कोर्स तीसरी कैटेगरी, एंड अदर कोर्सेज। तो जो हमारे अदर कोर्सेज होते हैं जो इन 3 में नहीं आते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्कशॉप, प्रिंसिपल्स मीट, तो वो हम लोग मिसलेनियस में डालते हैं। और फैकल्टी इंडक्शन का एक बॉक्स, उसमें फर्स्ट फैकल्टी इंडक्शन, सेकंड फैकल्टी इंडक्शन एंड सो ऑन। रिफ्रेशर का एक बॉक्स, उस रिफ्रेशर में एनवायरमेंटल साइंस, IT अवेयरनेस, ऐसे। सो कॉलेज टू कॉलेज एंड आपका जो भी, एक्चुअली हमारा कॉलेज का कंसेप्ट ही अलग जाता है, बट बाकी आप लोग जो है आपका एक ही फील्ड में आप लोग रहेंगे। तो कैटेगरीज का मतलब समझने के लिए किस सेमेस्टर का पेपर है, और पेपर या तो कोर्स मतलब जो पेपर आप टीच कर रहे हैं वो रहेगा आपके कोर्स का नाम। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अभी अपन स्टेप्स पढ़ते हैं कि कैटेगरीज को कैसे क्रिएट करना है। सो गिव हेडिंग इफ यू आर नोटिंग डाउन द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग कोर्स कैटेगरी। अभी देखिए, कैटेगरीज क्रिएट करना ये टास्क सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, क्योंकि ये राइट्स टीचर को नहीं होते या तो स्टूडेंट्स को नहीं होते। ये भी कंसेप्ट आप लोग समझ लो, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग या तो कुछ लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स भी होंगे। तो अगर आपने डिपार्टमेंट की एक साइट बनाई है तो आप एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप उसके एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे। फिर आप उसमें टीचर्स को ऐड करेंगे, जो भी आपका स्टाफ होगा, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वो टीचर को कुछ राइट्स कम रहते हैं। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपने को ये सारी चीज़ें विजिबल है फ्रेंड्स, ये साइट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, बट टीचर को और स्टूडेंट्स को ये चीज़ें विजिबल नहीं होती है, क्योंकि हर बच्चे को आपको कॉलेज के सारे राइट्स तो नहीं देने पड़ते। प्रिंसिपल के पास कुछ उसकी ये रहती है हैंड होल्डिंग, या तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास उसका पूरा राइट होता है। तो वैसे ही अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको सारी चीज़ें एज एडमिनिस्ट्रेटर, बट आगे जाके अगर आपको आपके डिपार्टमेंट की ही एक साइट बनानी है तो चीज़ें थोड़ी अलग होगी, क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके नीचे जो काम कर रहे हैं या तो उसके जो फेलो कलीग्स है, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, वो टीचर करके इस साइट में ज्वाइन होंगे। तो उनके लिए यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह HOD क्रिएट करके देंगे, या तो यू एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप लोग उनको यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे, देन ओनली दे कैन एक्सेस द साइट। तो ये थोड़ी चीज़ें अलग होती है, बट फिलहाल एज अ बिगिनर अपन ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये कैटेगरीज डिजाइन करने का काम भी एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही होता है, इसको टीचर या तो स्टूडेंट क्रिएट नहीं कर सकते। ये भी कंसेप्ट आप समझ लीजिए। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू हाउ टू क्रिएट कैटेगरीज। आफ्टर log in to Moodle site you will get this type of sidebar। हम बहुत बार क्या होता है
ये हाईड हो जाता है. ये जो दिख रहा है ना आपको लेफ्ट साइड में, ये गायब हो जाता है. आता कुठे जायचं हेच समजत नाही. अगर ये गायब हो जाता है तो आप लोग ये वाला देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिसतात आहे. ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस पे क्लिक करिए तो ये साइड बार अपीयर हो जाता है. तो ये अपीयर डिसअपियर का ऑप्शन है. तर जर तुमच्या याच्यावरती चुकून क्लिक झालं असेल तो ये साइड बार गायब हो जाएगा. तो कंफ्यूजन नहीं करना है. वापस ये टैब पे क्लिक करेंगे तो ये साइड बार अपीयर होगा. नाउ फॉर क्रिएशन ऑफ कैटेगरी यू हैव टू क्लिक ऑन साइट एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज अभी अपन साइट के अंदर जाके चेंजेस करने वाले हैं. सो दिस टैब दैट इज ऑफ साइट एडमिनिस्ट्रेशन इज ओनली अवेलेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटर ओनली. मतलब ये सिर्फ प्रिंसिपल या तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के लिए ये टैब ओपन है. बाकी बच्चे, बाकी टीचर्स साइट में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं. तो ये काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर करेगा. सो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन साइट एडमिनिस्ट्रेशन. आफ्टर क्लिकिंग ऑन साइट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे देखिए ये जो स्टेप कल एक सर बोल रहे थे परसों कि सर मैडम साइट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करना है, तो ये मैं लास्ट में बताऊंगी. इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी स्टेप. सो साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको ये पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे. यू हैव टू स्क्रॉल डाउन द पेज एंड ऑल दीज टैब्स यू विल गेट. अभी अपन धीरे धीरे एक एक टैब को पढ़ते हैं. फिलहाल आपको क्रिएट करनी है कैटेगरी. टू क्रिएट अ कैटेगरी यू हैव टू क्लिक ऑन कोर्सेस. पहली स्टेप काय केली अपन, लॉग इन टू योर मूडल साइट. सेकंड स्टेप में अपन ने क्लिक किया साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे. थर्ड स्टेप क्लिक ऑन कोर्सेस. आफ्टर क्लिकिंग ऑन कोर्सेस टैब, first tab you will get that is manage courses and categories. So click on manage courses and category. और यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन भी दिख रहा होगा add a category. तो either you can click on this tab or you can click on add a category. अभी ऐसे पेज दिखेगा. हमेशा टॉप मोस्ट साइड पे आपको ये ब्लैंक जगह दिखेगी, दिस इज फॉर एडवर्टाइजमेंट. तो यहाँ से कहाँ जाना है, ये पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दीज 2 पार्ट्स. आपको ये 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं अलग अलग. यहाँ पे एक साइड में दिया है क्रिएट न्यू कैटेगरी और दूसरे साइड में दिया है क्रिएट न्यू कोर्स. तो मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया, बाय डिफॉल्ट मूडल में एक कैटेगरी होती है दैट इज मिसलेनियस. तो मुझे अभी क्या करना है, ये मिसलेनियस के नीचे मुझे बीएससी सेमेस्टर 1 या तो एमएससी सेमेस्टर 1, क्योंकि मैं उसका अगर पेपर पढ़ाती हूँ तो मुझे वो क्रिएट करनी है. तो उसके अपन स्टेप्स पढ़ेंगे. तो आपको किस पे ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, या टॅबवर क्लिक करावं लागेल की या वाला टॅबवर. आप लोग न्यू कैटेगरी. Yes, you have to click on create new category. Once you clicked on create new category, now please थोड़ा सा ध्यान से इस पेज को देखिए, समझ लीजिए. पहला यहाँ पे दिया है पेरेंट कैटेगरी. मतलब आप ये जो नया कैटेगरी बना रहे हैं वो आपको मिसलेनियस के अंदर रखना है कि उसको फ्रेशली टॉप पे रखना है. आर यू गेटिंग द कंसेप्ट. मिसलेनियस के अंदर आपको सेमेस्टर 1 2 3 4 बनाना है कि मिसलेनियस को बाजू में रख के सेमेस्टर 1 अलग सेमेस्टर 2 अलग ऐसे करना है क्या, वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा. वो आप पहले आप सोच के रखिए कि आपको कैसे व्यू होना चाहिए स्टूडेंट को, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो पेरेंट कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी. तो ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, सो यू विल गेट दिस ऑप्शन ऑफ टॉप. तो आई सजेस्ट यू कि डोंट add your fresh category into miscellaneous, make it at the top. तो आप पेरेंट कैटेगरी किस पे क्लिक करेंगे, टॉप पे क्लिक करेंगे. ये कन्सेप्ट समझा फ्रेंड्स की मिसलेनियस आणि टॉप मधलं डिफरन्स काय आहे ते समजलं का. हो मॅम. मिसलेनियस मध्ये त्याच्यात अनेक समजा सेमिस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड असं करू शकतो ना. नाही बघा, सपोज तुम्ही एखादी कॅटेगरी बनवताय सर सेमिस्टर 1 ची, तर ती कॅटेगरी तुम्हाला मिसलेनियसच्या आतमध्ये सब कॅटेगरी म्हणून हवी असेल तर तुम्ही याला टॉप नका करू. यस.
ठीक है। और टॉप का मतलब क्या होता है, मिसलेनियस को छोड़ दो, मुझे अलग से अगर कुछ कैटेगरी दिखानी है सेमेस्टर 1 2 3 4 तो आप उसको टॉप पे क्लिक करिए। अच्छा, so top will be suitable. Yes, top is always suitable. So I am clicking on top. अभी आप जो कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम क्या देंगे, जो भी सेमेस्टर का वो पेपर होगा जो आप लोग पढ़ा रहे हैं उस सेमेस्टर का नाम आप यहाँ पे दीजिए। यहाँ पे देखिए रेड मार्क आपको सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है कैटेगरी नेम पे, बाकी की चीजें ऑप्शनल है, उसको फिलहाल नहीं भरा तो भी चलेगा। तो मैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है एमएससी सेमेस्टर 1। फिर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट कैटेगरी। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिलहाल मैं कुछ नहीं बता रही हूँ बिकॉज वी आर एट द बिगिनर स्टेज, तो अभी अपन यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे आप लोग इसमें थोड़े से एक्सपर्टाइज आ जाएगा तो फिर आप अपने तरफ से इस कैटेगरी या तो सेमेस्टर 1 के बच्चों को कुछ आप इंस्ट्रक्शंस देने वाले हो या तो सेमेस्टर 1 में बच्चे क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो अगर आपको देना चाहते हैं तो ये बॉक्स में आप लिख सकते हैं, बट फिलहाल मैं इसको रेकमेंड नहीं करती हूँ। यहाँ पे आप सिर्फ कैटेगरी का नाम डालिए और सिर्फ सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट कैटेगरी। सिंपल स्टेप्स ahead. After clicking on create category, now see. Can you see the difference? Previous slides में अपने को सिर्फ क्या दिख रहा था, दिख रहा था सिर्फ miscellaneous was there, ठीक है। Now you have added one more category that MSc is of semester 1. Got it? अभी देखिए यहाँ तक किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिए, ये सिंपल स्टेप्स है। ये स्टेप्स के फिर आप फिर से परफॉर्म करिए। अगर एक ही टीचर और 2 पेपर पढ़ा रहा है किसी और सेमेस्टर के तो आप और एक कैटेगरी बना दीजिए एमएससी सेमेस्टर 4 या तो 3, जो भी पेपर आप और पढ़ा रहे होंगे उसके लिए। So likewise you can create a category. Now we will move on to the actual part, how to create our new course in online mode. यहाँ तक if you have any difficulty till now, please ask. कळतं आहे पुढे जायचं? यस मैम, यस। ओके, बाकी मॅडम लोक समजताय सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए आगे के स्टेप्स पढ़ते हैं। यहाँ पे अभी अपन ने कैटेगरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहेगा अपना, स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग न्यू कोर्स। सो इफ यू आर नोटिंग डाउन द स्टेप्स, फ्लो चार्ट के फॉर्म में हमेशा वीडियो सुनने के लिए थोड़ा सा बोर होता है, तो मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट रहेगी सबके लिए कि जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ ना वो ऐसे एरो डाल के फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लीजिए। मतलब आप जब परफॉर्म करेंगे फटाफट त्या कॉपीमध्ये बघून तुम्ही स्टेप्स परफॉर्म करू शकता। मतलब मैंने तो ऐसे ही सीखा है मॉडल, जब हम लोग दिल्ली गए थे पढ़ने के लिए उन्होंने भी हमारे साथ रिकॉर्डिंग शेयर किए थे, बट रिकॉर्डिंग के सुन के फिर से उसको देख के करने से बेटर अपने कॉपी में अगर आप स्टेप्स लिखते हैं कि पहले एडिट प्रोफाइल एरो फिर ये फिर से एरो, ये फटाफट समझती है और एक पिक्चर अपने माइंड में क्लियर हो जाता है। तो मेरा ये एडवाइस रनिंग नोट्स आर इम्पोर्टेंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो रनिंग नोट्स निकालने की अपनी आदत हमेशा रहने देना, हमेशा। मतलब वेदर यू गो एट टॉप मोस्ट लेवल ऑल्सो, पर रनिंग नोट्स जब तक, मतलब अभी भी मेरे पास, वी वेंट दिल्ली इन 2014, बट 2014 की दिल्ली की वो कॉपी मेरे पास अभी भी है, क्योंकि अगर कुछ स्टेप्स मेरी छूट जाती है तो मुझे रिवाइज करना रहता है, तो लॅपटॉप कधी उघडेल आणि कधी चालू होईल माहिती नाही, त्याच्यापेक्षा कॉपी पटकन बघून आपण समोरच्या स्टेप्स करू शकतो। तो ये मैं हमेशा बताती हूँ कि आप अपने रनिंग नोट्स फ्लो चार्ट के फॉर्म में पटापट पेन्सिलने लिहून घ्या, पेनाने लिहून घ्या, तुम्हाला सॉल्व करायला असाइनमेंट्स या तो परफॉर्म करने के लिए बहुत ईजी जाए। बट हमें अपना हर एक का अलग अलग ये होता है पढ़ाई करने का तरीका, तो देखते हैं आपको जैसे सूटेबल लगता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग न्यू कोर्स। आता कोर्स म्हणजे काय? कोर्स मतलब क्या? पेपरचं नाव. हा, पेपर नेम। आता इथे केमिस्ट्री किंवा माइक्रोबायोलॉजी असं नाही येणार, जो पेपर आप लोग पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट का
वो पेपर का नाम मतलब रहेगा आपका कोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग न्यू कोर्स, मतलब तुम्हाला जेव्हा ब्रेक लागेल तेव्हा मला सांगाल, ठीक है? जब आप लोग थोड़ा सा थक जाएंगे, थोड़ा सा बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक चाहिए होगा तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करिए, तो थोड़ा सा रुक जाएंगे बीच में। आगे बढ़ेंगे। यस मैम, यस। Yes, Okay. ma'am. Yeah. Now friends, again we are on that page, create new course. बट अगर आपको लगता है कि मैंने अभी कैटेगरी बना ली है, अभी मुझे लैपटॉप पे काम नहीं करना और बंद कर देना है सब कुछ, तो ये पेज डायरेक्टली तो ओपन नहीं होगा। तो आप फिर से कहाँ से शुरुआत करेंगे? यहाँ तक कोई स्टेप्स बता सकता है कि अपन ये पेज में कैसे आए थे? हैव यू हेलो रीड? मैडम, यस साइट एडमिनिस्ट्रेशन में क्लिक किया था, यस वहाँ पे कोर्सेस में गए थे यस और फिर कैटेगरी के लिए करना है तो क्रिएट न्यू कैटेगरी, और अभी कोर्स के लिए करना है तो हाँ क्रिएट न्यू कोर्स पे। ओके ठीक आहे, पण त्याच्या पहिले आपण मॅनेज कोर्सेस अँड कॅटेगरीज मध्ये गेलो होतो, तेव्हा हे पेज डायरेक्टली ओपन होईल, किंवा तुम्ही ऍड अ न्यू कैटेगरी किंवा ऍड अ न्यू कोर्स मधनं जाऊ शकता। तो हमेशा ये स्टेप्स को रिवाइज करिए, मतलब आप लोगों को भी धीरे धीरे याद हो जाएगी। सो डायरेक्टली लॉग इन केल्यानंतर ये पेज नहीं आएगा, आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? साइट एडमिनिस्ट्रेशन, देन कोर्सेस, then manage courses and categories, and then you have to click on create new course. Now friends, this page is very very important. ये पेज में अभी अपन अपने कोर्स या तो पेपर के बारे में, मटेरियल तो नहीं बट उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं, जो बच्चे पढ़ेंगे और उनको पता चलेगा कि इस पेपर में उनको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इस सेमेस्टर में। जैसे देखिए, आप हमारी अपनी मूडल साइट देख रहे हैं अभी रोज, उसमें देखिए पहले पेज पे समरी पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब ये आरसी इन आईटी अवेयरनेस में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन कैसे होगा, मेरे बारे में कुछ डिटेल्स दिखेंगे, कोर्स का नाम दिखेगा। तो ये जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या तो समरी अबाउट योर पेपर आप लोग ऐड करेंगे, वो ये पेज है। सो फॉर क्रिएटिव और क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बच्चों को अपने को अपने पेपर के लिए अगर अट्रैक्ट करना है या तो उसको कैची बनाना है, तो ये पेज में आपको वो सारी करामत करनी पड़ेगी कि बच्चे अपने पेपर को अट्रैक्ट कर सके। तो वो कहाँ पे आप लोग एडिशंस करेंगे वो भी मैं धीरे धीरे बताती हूँ। तो अभी फर्स्ट उसमें टॅब आएगा कोर्स फुल नेम। कोर्स फुल नेम म्हणजे तुमच्या पेपरचं पूर्ण नाव अकॉर्डिंग टू द सिलेबस गिवन बाय योर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। आपकी यूनिवर्सिटी का हर एक का अपना एक सिलेबस होगा, पीडीएफ फाइल में वो सबके पास अवेलेबल रहता ही है। उस पेपर में या तो उस सिलेबस में पेपर का जो नाम पूरा दिया होगा, वो पूरा नाम आप लोग यहाँ पे डालेंगे जो भी पेपर आप पढ़ाते हैं, ठीक है? पेपर का मतलब आई होप सबको समझ में आया होगा, हो सकता है इट इज मच लेंदियर, तो वो पूरा नाम आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर आप लोग उसका शॉर्ट नेम भी बनाइए। शॉर्ट नेम भी अपने सिलेबस में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ साइंसेस या तो माइक्रोबायोलॉजी में तो है। फॉर एग्जांपल एडवांस टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी ऐसा अगर पेपर है तो उसको एटीएम करके ऐसे लिखते हैं। तो सबके सिलेबस में अपने पेपर का एक छोटा नाम भी दिया होता है, तो वो शॉर्ट नेम आप लोग यहाँ पे डालेंगे। अभी आगे का पार्ट थोड़ा समझिए। ये 2 फील्ड्स तो मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पे रेड मार्क दिया है। अपने पेपर को अच्छे से डिजाइन करना है तो ये कोर्स कैटेगरी का पॉइंट आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, अभी आपने बहुत सारे सेमेस्टर यहाँ पे कैटेगरीज अगर बनाई हैं, फिलहाल आपको यहाँ पे एक ही दिख रहा है एमएससी सेमेस्टर 1, क्योंकि मैंने एक ही कैटेगरी बनाई है। बट अगर मैंने 3 कैटेगरीज बनाई है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, तो यहाँ पे वो तीनों भी शो होंगी जब मैं ये सर्च के ऊपर क्लिक करूंगी, ठीक है? अगर आप सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो सारे कैटेगरीज डिस्प्ले होंगे जो भी आपने क्रिएट किए हैं। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दैट कैटेगरी टू विच दिस पेपर बिलोंग्स। आर यू गेटिंग? ये पेपर कौन से सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, वो सेमेस्टर आप ये ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करेंगे। हा कन्सेप्ट समजला का एवढा? Yes, ma'am. गॉट इट? सबको यस समझा? यस मैम,
ओके Yes, madam. जैसे मैंने पेपर का नाम डाला है माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, उसका शॉर्ट नेम मैंने एमएम लिखा है। कैटेगरी मुझे मिसलेनियस में नहीं डालना है वो, क्योंकि वो पेपर किन बच्चों के लिए है, एमएससी सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी एमएससी सेमेस्टर 1। हाँ, उसके बाद कोर्स विजिबिलिटी, नेक्स्ट टैब इज कोर्स विजिबिलिटी। बाय डिफॉल्ट तो ये शो ही रहता है, मतलब कोर्स आपको विजिबल रखना है फिलहाल, कि अभी टाइम है उसको शो करने के लिए। आप पहले ही बना के अगर ये रखते हैं और अभी 3 महीने के बाद अगर आपका सेमेस्टर चालू होगा तो फिलहाल आप उसको हाइड करके भी रख सकते हैं। बट मेरा ये एडवाइस रहेगा तो ऑलवेज मेक इट शो, क्योंकि जब तक आप बच्चों के साथ कुछ यूजर आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे तब तक वो उसको देख भी नहीं पाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये शो रहता है विजिबिलिटी, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। गलती से अगर वो हाइड रहता है तो आप कितना भी उसमें मटेरियल डाल दीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, वो बच्चा उसको देख नहीं पाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर ऐसा होता है तो ये पेज में वापस जाइए और देखिए कि गलती से आपने वहां पे हाइड तो नहीं करके रखा है। बट बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन शो ही रहता है। फिर आप लोग अपना जो भी कोर्स या तो पेपर या तो सेमेस्टर चालू होने वाला होगा उसकी स्टार्ट डेट डाल सकते हैं, एंड डेट डाल सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आपको आज से ही उसको स्टार्ट करके रखना होगा, तो बाय डिफॉल्ट जिस दिन आप ये डिजाइन करते हो उस दिन की ही डेट यहाँ पे रहती है। सो मेक इट एज इट इज, या तो फिर आप उसको चेंज करिए अपने पेज से कि आपको उसको स्टार्ट कब करना है और एंड कब करना है, तो आप लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। देन कोर्स आईडी नंबर, अगर है आपके सिलेबस में कि कोर्स का कोई आईडी नंबर वगैरह दिया है तो आप लोग यहाँ पे डालिए, नहीं होगा तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज नॉट अ कंपल्सरी पार्ट। तो ये ऊपर वाले टैब्स तक किसी को कुछ डिफिकल्टी होगी तो पूछिए, अदरवाइज ये अभी अपना थोड़ा सा लेंदियर वाला पार्ट चालू होगा, दैट इज रिगार्डिंग कोर्स समरी। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? If you have any doubt, please ask till now. No, ma'am. चलिए आगे बढ़ेंगे। Yes, ma'am. Okay. Now we Yes. are on this page. We are on the same page rather. तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स आएगा और यहाँ पे दी है कोर्स समरी। तो ये जो बॉक्स है यहाँ पे मुझे मेरे पेपर के बारे में सारी चीज़ें लिखनी है। अभी कल जैसे आपको बहुत टाइम हो गया तो मैंने आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन बताना था मुझे कि आज के इसके लिए आपको कल ही कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी थी, बट कल आप लोगों का सेशन थोड़ा एक्सटेंड हो गया तो मेरी बात नहीं हो पाई आप लोगों से। कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मैं बताती हूँ, फिर आफ्टरनून में आप लोग इसको परफॉर्म करिए कि ये कोर्स समरी के बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। सब लोगों के पास अपने पेपर का सिलेबस होगा, तो वो सिलेबस में उस पेपर के लिए जो भी चीज़ें दी है, ये बॉक्स का पहले मतलब समझ लीजिए। बच्चों को आपको बताना है कि इस पेपर में आप बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेम ऑफ द पेपर लिखा, मेरा नाम लिखा, किस सेमेस्टर का है वो लिखा, टाइप ऑफ कोर्स फाउंडेशन कोर्स आहे, कंपल्सरी आहे, कोर सब्जेक्ट आहे, जो भी होगा वो आप लोग मेंशन करिए। देन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द कोर्स या तो पेपर, यूनिट 1 में बच्चों को क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या रहेगा, 3 में क्या रहेगा। लाइकवाइज हो सकता है किसी को 4 यूनिट है, किसी को 6 यूनिट है, दैट वैरीज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो वो चीजें जो आपके सिलेबस में दी है वो ब्रीफ में, खूप भरभरून सिलेबस नाही टाकायचं आहे, ते तो तुम्ही शिकवणारच आहे पुढे। एक ब्रीफ आउटलाइन देनी है बच्चों को, या तो फिर आपके सिलेबस में देखिए युनिट के हेडिंग्स होंगे आणि मग त्याच्या खाली त्या युनिटचं डिस्क्रिप्शन असतं, तो वो यूनिट के सिर्फ हेडिंग्स भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। टू मेक इट समवॉट ब्रीफ आप लोग यूनिट्स के हेडिंग भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर बच्चों के लिए अगर कुछ रेफरेंस बुक्स के नाम आपको मेंशन करने हैं तो यहाँ पे आप लोग उसकी लिंक या तो उसके नाम मेंशन करिए। फिर बच्चों को बताइए कि इस पेपर में आपका असेसमेंट और इवैल्यूएशन कैसे होगा। जैसे अपने RTMNE में होता है, थियरी पेपर्स 80 मार्क्स के रहते हैं, इंटरनल 20 मार्क्स, प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2 50-50 मार्क का होता है। अगर लास्ट सेम के बच्चे हैं तो उनको प्रोजेक्ट या तो डेजर्टेशन होता है 100 मार्क्स का। सो वॉट एवर इट मे बी, ये सबके लिए सेम नहीं होगा, इट वैरीज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन। तो आप अपने बच्चों के उस पेपर के लिए क्या क्या चीज़ें असेसमेंट और इवैल्यूएशन के लिए रखेंगे वो आप लोग यहाँ पे मेंशन करिए।
ठीक है, कोर्स समरी में क्या लिखना है वो समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। ये बॉक्स में क्या क्या लिखना है ये कंपलसरी है। जब आप लोग मुझे मूडल साइट सबमिट करेंगे तो आपका इवैल्यूएशन भी मैं ये सारी चीजें देखकर ही करूंगी आउट ऑफ 20। तो हर बॉक्स भर के आपको अच्छे से सबमिशन करना है। तो आपको ये बॉक्स में कोर्स समरी नाम के बॉक्स में क्या लिखना है वो समझ में आ गया? सगळ्यांना समजला है? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अभी। यस। यस, यस यस ठीक है। अभी देखिए, अभी Yes, ma'am. इसमें आप अपने तरफ से कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपको उसको बोल्ड करना है। अभी आप लोग सब लोग फैमिलियर है, अभी अपन इतना आईटी पढ़ चुके हैं। उसका फॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड, इटैलिक, सेंटर, पॉइंटर, जो भी आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं, आपको जो अच्छे लगते हैं वो आप करिए। ठीक है, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी ना। अभी अपन यही पेज में है, मैंने कहीं पे भी नीचे स्क्रॉल करके सेव वगैरह फिलहाल नहीं किया है, क्योंकि अभी मुझे इसमें और एक चीज ऐड करनी है और वो चीज थोड़ी सी ट्रिकी चीज है। वी विल गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये समरी के साथ साथ अगर आपको बच्चों को इस पेपर से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियो अगर देना है, आपका अगर वीडियो खुद ने बनाया हुआ है तो वो भी चलेगा, या तो YouTube में से आप लोग फिलहाल वो वीडियो ले सकते हैं। वीडियो किस चीज़ का लेना है आपके कोई टॉपिक से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ मैं, ओवरऑल इस पेपर को जो वीडियो सूट करता है। तो जनरली क्या होता है, मतलब कंसेप्ट वाइज अगर अपन देखते, कल मैडम ने आपको स्वयं के बारे में बताया था। स्वयं में जो अपन ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं तो उसमें पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो देना पड़ता है। मैडम ने बताया होगा ना कल, एक 10 मिनट का इंट्रोडक्टरी वीडियो यू हैव टू प्रिपेयर। यस और नो? Yes. ma'am. ठीक है, तो वो जो इंट्रोडक्टरी वीडियो होता है, बच्चों को पढ़ने से अच्छा देखने में और सुनने में मजा आता है, रीड करने से अच्छा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, अगर आपको आज टाइम मिलता है तो ये जो कोर्स समरी आपने लिखी है, ये कोर्स समरी को आप वीडियो के फॉर्म में बोल के उसका एक छोटा सा 1-2 मिनट का वीडियो बना लीजिए। खुद के मोबाइल में ही वीडियो ऑन करिए, और वीडियो इन द सेंस अपने जो टैब्स होते हैं वीडियो के वो ऑन करिए, और ये समरी एक पेज में लिखी हुई रहेगी आपके पास। आप उसको बोलिए और अपना ही एक छोटा सा वीडियो बनाइए। बना सकेंगे सब लोग? Yes. यस यस मैम। उस वीडियो में आपको क्या बोलना है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस पेपर, जो भी है। आई एम डॉक्टर प्रीति धार्मिक, दिस इज द पेपर ऑफ सेमेस्टर 1। इन दिस पेपर वी आर गोइंग टू स्टडी दिस यूनिट, जो भी है। ठीक है, एंड इन दिस पेपर यू विल बी इवेल्युएटेड फॉर 100 मार्क्स। जो भी आपने इस समरी में लिखा है वो आपको वीडियो के फॉर्म में बोल के उस छोटा से वीडियो को बना के रखना है। बना पाएंगे आप ये छोटा सा कोर्स समरी का वीडियो? यस। ठीक आहे, खूप मोठा नका बनवू, हार्डली 2 मिनिटाचा वगैरे बनवला तरी चालेल, 1-2 मिनिटाचा। ठीक है, अभी वो वीडियो आपके मोबाइल में रहेगा या तो लैपटॉप में रहेगा। उस वीडियो को आपको ये कोर्स समरी में पेस्ट करना है। अभी अपन देखेंगे हाउ टू अपलोड वीडियो इन कोर्स समरी। अभी अपन कौन से स्टेप में है वो समझ में आ रहा है? कोर्स समरी वाले पेज में अपन थे। बीच में मैंने आपको बताया कि कोर्स समरी का एक वीडियो आपको छोटा सा बनाना है, और उस वीडियो को आपको पहले अपलोड करना है यूट्यूब में। हाउ टू अपलोड वीडियो इन यूट्यूब, आपके लिए मैंने ये प्रिपरेटरी वीडियो अपने मूडल साइट में दिया है। हैव यू गॉन थ्रू दैट वीडियो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इसके स्टेप्स आप लोगों के पास ऑलरेडी है कि कोई भी वीडियो रहे उसको YouTube में अपलोड कैसे करना है। तो अभी मैं मान के चलती हूँ कि आपने कोर्स समरी का वीडियो बनाया है और उस वीडियो को किस में अपलोड किया है? YouTube में अपलोडेड फॉर्म में वो ऑलरेडी है। आगे मैं स्टेप्स बताऊंगी आपको इसके बाद कि वो YouTube के वीडियो की लिंक
अपने कोर्स समरी के पेज में, कोर्स समरी का पेज मतलब ये वाले पेज में कैसे लेना है। यहां तक किसी को कुछ कंफ्यूजन हुआ है क्या? अगर होगा कंफ्यूजन तो क्लियर कर लीजिए इसी पेज में, क्योंकि आपको ये सब आज दोपहर में प्रिपरेशन करनी है और सबमिशन करना है। कोणाला काही डाऊट आहे का इथपर्यंत? हेलो मैम, हाँ मुझे ये जो आपका भी जो स्क्रीन में भी जो पेज आ रहा है, यस जिसमें हमने नेम ऑफ पेपर, टीचर, सेमेस्टर और जो हाँ। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखा है, ये कैसे आया? ये यहाँ फाइल को क्लिक करने पे आया क्या? नहीं नहीं नहीं, ये अपन उसी पेज में है ना मैडम, क्रिएट न्यू कोर्स में अपन गए। आप साइमल्टेनियसली कर रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ये मैं देखिए आपको अभी अपन यहाँ पे थे ना क्रिएट न्यू कोर्स में। जी मैम, हाँ क्रिएट न्यू कोर्स के बाद ये वाला पेज आया। करेक्ट, हाँ ये ये पेज ये समझा। यही हाँ। है, इसी पेज में मैं नीचे स्क्रॉल किया है मैंने। ओके, ठीक है, उसी पेज हाँ। में है, उसी पेज में आरती, अपन वही पेज में है। उसी में अपने को डिस्क्रिप्शन में कोर्स समरी दिखेगी। ये कोर्स ओके। समरी वाला बॉक्स है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है ऑन मैम। द सेम पेज। अभी तक मैं नीचे जाके मैंने कुछ भी सेव वगैरह नहीं किया है, अपन उस पेज के मिड में आए हैं अभी। ओके मैम, ठीक है, ओके, क्लियर। हाँ, अजून कोणाला काही डाऊट आहे? मॅम ते कोर्स डेट आणि कोर्स एंड डेट टाकायच्यात का? सर बघा, सध्या तुम्ही जर त्याला नाही चेंज केलं ना तरी चालेल, पण जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युअल मध्ये काही पोरांसाठी बनवाल पुढे जाऊन, तर त्या केसमध्ये तुम्ही हे चेंजेस करू शकता। ओके, ठीक आहे, इथपर्यंत कळलंय सगळ्यांना? Ma'am, हम्म, may I put the paper 1 or 2 in the course short name, in the tab of course short name? कोर्स शॉर्ट नेम, दिस वन ना सर? हाँ। जो भी आपका टाइटल है पेपर का, उसकी शॉर्ट फॉर्म्स, फर्स्ट इनिशियल्स। Okay. इट इज देयर इन योर सिलेबस। RTMNU के तो सारे ही सिलेबस में उसके शॉर्ट नेम होते हैं। देखिए, या तो फिर आप अपने मन से भी बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म अगर आपको देना है तो, बट इट इज कंपल्सरी फील्ड, तो आपको इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, इसमें कुछ तो भी आपको लिखना पड़ेगा। Okay. ठीक आहे, अजून कोणाला काही विचारायचं आहे का? आपण या कोर्स समरीच्या बॉक्समध्ये आहोत, क्योंकि इसके आगे थोड़ी सी स्टेप्स डिफिकल्ट है, इसलिए यहां तक समझ में आया है सबको? यस। Okay, so now we are going to study how to get link of your video which is in the YouTube. फाइन, सो उसके लिए अभी देखिए थोड़े से ट्रिकी है, मैं एक दो बार एक्सप्लेन करूंगी अगर नहीं समझता है तो। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने समरी ऐड कर ली है। अभी मुझे क्या करना है, ये समरी के साथ साथ एक वीडियो भी देना है बच्चों को, जो मैंने बनाया है, मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर एग्जाम्पल। और वो वीडियो अभी कहाँ पे अपलोड करके रखा है मैंने? यूट्यूब में। तो उसके लिए यूट्यूब में जो वीडियो है, वो वीडियो का जो कोड है वो दूसरे लैंग्वेज में है, कंप्यूटर लैंग्वेज में, HTML फॉर्मेट में है वो। ठीक है, जो कंप्यूटर वाले फ्रेंड्स होंगे उन लोगों के लिए सारी चीज़ें थोड़ी इजी होगी सुनने में, बट जो बाकी के बैकग्राउंड्स के हैं उनके लिए थोड़ा सा समझ लीजिए। आपने जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया है उसका कोड मुझे यहाँ पे देना है, तो वो जो कोड की लैंग्वेज है वो HTML फॉर्मेट है, और जो मैंने समरी टाइप की है इट इज़ योर ABCD लैंग्वेज, इट इज़ नॉट अ कोडेड लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये नहीं है। तो दोनों भी चीज़ें अलग अलग है। मेरा यूट्यूब का वीडियो किस लैंग्वेज में है बताइए? HTML फॉर्मेट में, और जो मैंने समरी बनाई है दैट इज इन ABCD लैंग्वेज, नॉर्मल अपनी इंग्लिश में है। तो एक तो मुझे वो कोड को ABCD में कन्वर्ट करना होगा, या तो ये मेरी जो समरी है इसको मुझे कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कन्वर्ट माय दिस समरी इनटू HTML लैंग्वेज। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बटन पे क्लिक करना है। सो हाउ व्हाट यू विल डू इज यू हैव टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर समरी। जो भी आपने समरी यहाँ पे टाइप की है उसको लेफ्ट माउस क्लिक से पूरा सिलेक्ट करिए, देन गो टू दिस टैब, दिस डाउनवर्ड एरो बटन यू विल गेट। अभी देखिए कंप्यूटर वर्जन
टू वर्जन ये चीज़ें थोड़ी अलग दिखती है। किसी कंप्यूटर में यहाँ पे सिर्फ बॉक्स दिखेगा। तो ये जो पहला टैब है ना, इसके ऊपर क्लिक करिए, दिस प्लस डाउनवर्ड एरो टैब, इट इज़ फॉर शो हाइड एडवांस बटन। आप जैसे ये फर्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे और एक टैब ओपन हो जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। ये टैब्स में आपको ये जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है, कैन यू सी दिस ऑप्शन ऑफ HTML? यस मैम। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये पूरे समरी को सिलेक्ट करना है पहले, ये शो मोर एडवांस बटन में जाएंगे और उसके बाद टिक करेंगे दिस HTML फॉर्मेट, ठीक है। वंस अभी देखिए किसी किसी के इसमें ये जो HTML फॉर्मेट है कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, तो यू हैव टू सर्च फॉर दिस, ठीक है। जो दो एरोज है एक दूसरे के तरफ पॉइंटेड यानी मदद स्लैश है, दिस इज फॉर HTML। तो इसकी जगह थोड़ी चेंज हो सकती है, बट ये ऑप्शन आपको वहां पे दिखेगा ही। तो जैसे ही आप ये HTML पे क्लिक करते हैं, अभी आपकी ये समरी देखिए चेंज हो जाएगी कोडेड लैंग्वेज में, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझ लो, अभी अपन ये मूडल के पेज में थे यार, ये वेबएक्स का हाँ, आपको ये दिख रहा है, अभी अपन मूडल के पेज में है। आपका वीडियो कहाँ पे है, अभी सेव कहाँ पे करके रखा होगा आप लोगों ने? YouTube में। तो मुझे दूसरे नए टैब में YouTube ओपन करना है। ये मैंने टैब वैसे ही रहने दिया है, यू हैव टू ओपन न्यू टैब। नया टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं टाइप करूंगी youtube.com। youtube.com में ये सर्च विंडो आपको सबको पता है। आपने जिस किसी नाम से आपका वीडियो सेव किया होगा उसके क्रेडेंशियल्स आप डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा नाम डाला है, सपोज दिस इज माय डिजायर्ड वीडियो, जिसका कोड मुझे समरी में लेके जाना है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। मुझे बताइए यहां तक किसी को कुछ दिक्कत है? मैंने मूडल को बंद नहीं किया है, मेरा मूडल ये दूसरे टैब में चालू है अभी भी। मैंने नए टैब में YouTube ओपन किया, मेरे वीडियो का नाम डाला है, एंड इफ दिस इज योर डिजायर्ड वीडियो, क्या करना है आपको, इस वीडियो को पॉज करेंगे, थांबायचं आहे त्या व्हिडिओला। पॉज करने के बाद इस वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन द वीडियो। आफ्टर राइट क्लिकिंग 4th नंबर का ऑप्शन आपको दिखेगा, कॉपी एम्बेड कोड। गलती से बहुत बार ये वाली चीज आप लोग ले लेते हैं, कॉपी वीडियो URL, ये नहीं लेना है, आपको उसका कोड लेना है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, कॉपी एम्बेड कोड। वंस यू क्लिक्ड ऑन कॉपी एम्बेड कोड, तो वो जो कोड आपने लिया है वो आपके माउस के लेफ्ट क्लिक में है, अभी आपने उसको ले लिया है। यू गो बैक टू यूर मूडल, इसको मैंने HTML पे क्लिक किया था, ये अपनी समरी जो है वो HTML में कन्वर्ट हो चुकी है। नाउ ये समरी के ऊपर आपको वीडियो दिखना चाहिए बच्चों को, कि समरी के नीचे वीडियो डिस्प्ले करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। इफ मुझे बच्चों को वीडियो पहले दिखाना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे फर्स्ट कर्सर यहाँ पे माउस क्लिक से आपको लाना है। जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर लाते हैं, थोड़ी स्पेस वहाँ पे बना लीजिए एंटर करके, देन माउस में अपने अभी लेफ्ट माउस क्लिक में आपने वो कोड लाया है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। क्या लेके आए हैं आप लोग YouTube में से, उस वीडियो का एम्बेड कोड आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। दिस इज ऑल्सो द कोडेड लैंग्वेज, वीडियो तो दिख नहीं रहा है, तो मुझे अभी वापस टिक करना पड़ेगा दिस HTML बटन। लास्ट में आपको ये HTML बटन पे फिर से टिक करना होगा। नाउ माय वीडियो इज विजिबल एंड बिलो दैट वीडियो योर कोर्स समरी इज विजिबल। मतलब बच्चों को वो इंट्रोडक्टरी वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए भी मिलेगा, और अगर कुछ मिस हो जाता है सुनने में तो उनके पास रिटर्न वाली चीजें भी रहेगी।
In this way, you can add embed code of your own brief video, introductory video into your course summary. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट होगा, कुछ स्टेप्स नहीं समझे होंगे तो प्लीज पूछिए. काय काय केलं समजलं का? Yes, ma'am. वरुण, एक बार मैं डेमो करके दिखाऊं इसका. यस, दाखवा एकदा. ओके, सो देखिए मैं डेमो बताती हूँ. पहले अपन ये वाला पेज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं. इज इट ओके? ये पेज अपन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब ये स्टेप्स अपने हो जाएंगे. Yes. देन आई विल गो विद द डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट. मतलब ये पार्ट एक बार करके नहीं देखते ना फ्रेंड्स, तब तक नहीं समझेगा. ठीक है, तो ये अभी अपना कोर्स समरी का बॉक्स हो गया है. मैं अभी यहाँ से नीचे आती हूँ फिर से. ये देखिए 2 वर्टिकल बार्स आपको दिखेंगे. ये जो वर्टिकल बार है ये आपको कौन से पेज में दिख रहा है, किस बॉक्स में दिख रहा है? इथे खूप लोक कन्फ्यूज होतात. कोर्स समरी मध्ये. हाँ, हे जे आहे हा वर्टिकल बार ये कोर्स समरी का है. तो अगर इसको मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो मुझे ये कोर्स समरी के नीचे की चीजें दिखेगी. बट अभी मुझे इस पेज के नीचे जाना है, तो मैं कौन से वर्टिकल बार को नीचे ले जाऊंगी? ये वाले साइड के. साइड वाले. ठीक है, हे मी खूप छोट्या छोट्या गोष्टी सांगते हैं, बट सभी लोगों के लिए थोड़ी सारी चीजें इजी नहीं होती है, इसलिए मुझे ये की पॉइंट्स बताना जरूरी है. देखिए अभी अपन आ गए कोर्स समरी के पेज के नीचे. somebody's audio is on. ठीक है, अभी ये कोर्स इमेज में फिलहाल कुछ मत डालिए, लीव इट एज इट इज. फिर से इस पेज को अपन नीचे लेके आते हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कोर्स फॉर्मेट. वी आर स्टिल ऑन द सेम पेज. जो मुझे आरती मॅडम ने जे भी क्वेश्चन पूछा था, आपण त्याच पेजवर आहोत जहाँ पे मैंने पेपर का नाम डाला था, उसका शॉर्ट नेम, कोर्स कैटेगरी, फिर कोर्स समरी का बॉक्स आया था. वी आर ऑन द सेम पेज, सिर्फ उसके नीचे आए हैं अपन. सो नेक्स्ट टैब इज कोर्स फॉर्मेट. कोर्स फॉर्मेट में बाय डिफॉल्ट वो टॉपिक्स फॉर्मेट ही होता है. अगर वो टॉपिक्स फॉर्मेट नहीं है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाएंगे और उसको टॉपिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. टॉपिक्स फॉर्मेट मतलब, टॉपिक्स मतलब अभी आपको समझने के लिए यूनिट समझिए उसको. जितने यूनिट उतने टॉपिक्स आपको वहाँ पे मेंशन करने हैं. जैसे अपने मूडल साइट में मैंने टॉपिक फॉर्मेट ही लिया है. हर टॉपिक मतलब रोज की डेट आप लोग देखते हैं ना, 4 अगस्त, 5 अगस्त. सो वैसे टॉपिक मतलब यहाँ पे आपके सिलेबस से रिलेटेड जो है, दैट इज यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3. सो वो हो गया आपके टॉपिक. तो ऑलवेज सिलेक्ट हियर फॉर्मेट, कौन सा? टॉपिक फॉर्मेट. देन नंबर ऑफ सेक्शंस, किती युनिट आहे तुमच्या पेपरमध्ये उतने सेक्शंस आप लोग यहाँ पे बनाएंगे. सो फॉर एग्जाम्पल अगर 4 यूनिट है तो आप यहाँ पे 4 सेक्शंस बनाइए. बाकी कहीं पे भी कुछ भी फिलहाल चेंजेस मत करिए कि एडवांस पार्ट है, ये एकदम इजीली आपको अभी नहीं समझेगा, इसलिए ये मैं बीच की स्टेप्स जो है वो थोड़ी स्किप कर दी हूँ क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है करना. तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ सेक्शंस डाल दिए हैं. फिर पेज को और नीचे लेके आएंगे एंड सेव एंड रिटर्न करिए या तो सेव एंड डिस्प्ले करिए. दोनों में भी सेव तो होंगे लेकिन अपीयरेंस थोड़ा सा अलग होगा. तो आई प्रिफर सेव एंड रिटर्न, मतलब आप उस कोर्स में वापस चले जाएंगे और सेव एंड डिस्प्ले भी कर सकते हैं. अभी जैसे ही मैं सेव करती हूँ ना, वहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कोर्स तो दिसतच नहीं है, इतना बनाया अपन ने लेकिन गया कहाँ. तो हमेशा कहीं पे भी अगर आप गायब हो जाते हैं तो याद रखना यहाँ पे साइट होम दिखेगा. सो ऑलवेज यू हैव टू क्लिक ऑन साइट होम. जैसे ही आपका कुछ टास्क कंप्लीट हो जाता है, आप हमेशा किसके ऊपर क्लिक करेंगे? साइट होम पे क्लिक करेंगे. आफ्टर क्लिकिंग ऑन साइट होम, you will on the first page of your Moodle site and there by default you will get one, actually अपने पास एक कोर्स ऑलरेडी होता है, that is what is Moodle. जो मैं अभी सारा बता रही हूँ ना, वो टेक्निकल लैंग्वेज में ये पूरे वीडियो में दिया है जिनोमियो ने अपने को. ये ऑलरेडी उनका रहता है वीडियो, बट उसके नीचे आप देखिए अवेलेबल कोर्सेस में आप जो अभी पेपर डिजाइन करेंगे वो यहाँ पे शो होगा बच्चों को. पेपर का नाम, उससे रिलेटेड वीडियो और उससे रिलेटेड समरी जो मैंने अभी डाल.
ठीक है, जैसे आप लोग अभी देखते हैं ना मूडल साइट में, अब आप लोग जहाँ पे अटेंडेंस वगैरह देते हैं, क्या लिखा रहता है, रिफ्रेशर कोर्स इन आईटी अवेयरनेस, और उसके बारे में समरी दी होती है। फिर आप लोग इस पे क्लिक करते हैं और कोर्स के अंदर जाते हैं। सो दिस इज द कोर्स brief summary about your course. We have created our course along with its brief summary, but we have not yet added any content in that particular paper. We have just given a brief outline, evaluation pattern for the reading part to the students. उनको पता चलेगा कि ये पेपर में बच्चों को क्या क्या पढ़ना है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? अगर आप इस पेपर के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें अभी तक कुछ भी मसाला आप लोगों ने भरा नहीं है, कुछ भी पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, कुछ भी अभी तक सेव नहीं किया है। आपने सिर्फ इसको एक टेम्पलेट के फॉर्म में यहाँ पे रखा है। तो आगे के स्टेप्स रहेगी, दिस इज कोर्स क्रिएशन, आगे रहेगा डिजाइनिंग ऑफ द कोर्स और कंटेंट एडिशन। सो वो पार्ट अभी अपन थोड़ी देर के बाद देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अभी ये ब्लैंक कोर्स रहेगा, यहाँ तक के स्टेप में अपन आ गए हैं। 4 टॉपिक्स अपन ने सिलेक्ट किए थे, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4। अभी अपने को यहाँ पे बहुत सारा एडिटिंग करना है कोर्स के अंदर जाके, बट ये स्टेप्स तक किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिए। मैम, यस, ये जो कोर्स समरी अपन जो फिल करने के बाद सेव एंड रिटर्न करने के बाद अगर उसको एडिट करना है फिर से तो कर हाँ सकते हैं ना? कर सकते हैं। मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन में वो बताती हूँ कि कैसे वापस उसमें जाएंगे। ओके मैम। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस और नो? यस यस मैम। Yes, ma'am. Yes. Yes. थकले का थक गए क्या? बोर हो गया क्या आप लोगों को? नहीं नहीं नहीं। No, ma'am. देखिए, और एक चीज अभी मुझे बतानी है। अगर आप लोग अपने साइट से लॉग आउट हो जाते हैं, आफ्टर लॉग आउट आप फिर से अपने साइट में जाएंगे, और अगर आपको ये कोर्स का जो ब्रीफ दिया है वो किसी और को आपको बताना है विदाउट गिविंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अगर मेरे साइट में मैंने कुछ कोर्स डिजाइन किया है और मुझे आपको सिर्फ उसको शो करने के राइट्स देने हैं, सिर्फ आप उसको देख सकते हैं, उसमें कुछ असाइनमेंट्स नहीं सबमिट कर सकते, क्विज नहीं दे सकते, सिर्फ आपको अगर किसी को वो कोर्स को दिखाना है तो उसके लिए ऑप्शन क्या होता है, आपके कोर्स को गेस्ट एक्सेस देना होता है। तो नेक्स्ट स्टेप अपनी रहेगी, पहले इतने स्टेप्स का डेमोन्स्ट्रेशन बता दूं, फिर अपन आगे के स्टेप में जाएंगे कि हाउ टू गिव गेस्ट एक्सेस टू योर पर्टिकुलर कोर्स। गेस्ट एक्सेस का मतलब किसी को पता है? एनीबडी नोज व्हाट डू यू मीन बाय गेस्ट एक्सेस? मैम वो सिर्फ देख सकते हैं कि आपने कैसा, हमने कैसा कोर्स डिजाइन किया है, पर कुछ एडिट और कुछ और मतलब क्विज वगैरह अपीयर नहीं कर सकते, असाइनमेंट नहीं कर सकते, बट सिर्फ वो देख सकते हैं। यस, गेस्ट एक्सेस का मतलब आप उनको सिर्फ शो करने के लिए ले रहे हैं, रादर उनको वो देखने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत नहीं है। दैट इज नोन एज गेस्ट एक्सेस। अभी आप लोग अपने मूडल साइट में जाते हैं रोज सुबह अटेंडेंस देने के लिए, तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड लगता है, मतलब उस पेपर में कुछ परफॉर्म अगर करना है, सिर्फ रीडिंग मटेरियल लेना है तो नो नीड ऑफ यूजर आईडी पासवर्ड। बट अगर कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, मतलब क्विजेस, असाइनमेंट, डिस्कशन फोरम, इन चीजों के लिए फिर उनको उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड होना जरूरी है। बट अगर सिर्फ आपको उनको शो करने के लिए देना है विदाउट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, उस वक्त फिर आपको आपके पेपर को क्या देना जरूरी है, गेस्ट एक्सेस देना जरूरी है। ठीक है, तो अभी अपन थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे कि मेरा कोर्स बाहर से तो बन गया है, बट उसको अभी मुझे गेस्ट एक्सेस कैसे देना है, उसके स्टेप्स अभी अपन थोड़ी देर के बाद देखते हैं। पहले मैं इतना डेमो बता देती हूँ। Similar to this what we are getting from journal paper, ma'am. In some of the paper it is given as guest access also. Is it similar to this?
No, madam, that guest access is different. It is for Moodle site, which I am telling you, it is for Moodle site. In particular site, if you want to give guest access to one particular course only, that means, yes, एक पर्टिकुलर पेपर में अगर आपको गेस्ट एक्सेस देना है तो उसके लिए ये स्टेप्स थी, हाउ टू गिव गेस्ट एक्सेस टू अ पर्टिकुलर कोर्स. ठीक है, these steps I will cover shortly. First I will go to the demonstration part till now. Can you see this our Moodle site hrdcnagpur.gnomeo? Yes. यस मैम. ठीक है, अभी मैं आपको स्टेप्स बताने के लिए आप लोग ही धीरे धीरे मुझे रिवाइज करके बताइए कि नया कोर्स कैसे बनाएंगे या तो कैटेगरी कैसे बनाएंगे. फर्स्ट स्टेप इज लॉग इन टू योर साइट. ठीक है, वंस यू लॉग्ड इन, अगर आपको नई कैटेगरी क्रिएट करनी है तो बताइए स्टेप्स कहाँ पे जाऊं मैं अभी. हाउ टू क्रिएट साइट कैटेगरी. एडमिनिस्ट्रेशन. यस, दिख रहा है आपको, ये साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे. फिर ये पेज को मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी. देन कोर्सेस. देन मैनेज कोर्सेस एंड कैटेगरी. मैनेज कोर्सेस एंड कैटेगरीज. देख पा रहे हैं आप लोग, ये दो चीजें आपको दिख रही है, क्रिएट न्यू कैटेगरी, क्रिएट न्यू कोर्स. अभी मैंने जो मेरा बनाया है रिफ्रेशर, तो अभी अपन मिसलेनियस में ही मैंने भी फिलहाल बनाया है, लेकिन अभी अगर मुझे नई कैटेगरी बनानी है, सो वेयर यू विल क्लिक Create new category. क्रिएट न्यू कैटेगरी. ठीक है, सपोज मी बनवते आहे MSc सेमेस्टर 2. अभी ये जो कैटेगरी है वो मुझे अगर मिसलेनियस में नहीं चाहिए, आई विल क्लिक ऑन टॉप. टॉप. ठीक है, बस बाकी कहीं पे भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली क्रिएट कैटेगरी. झाली आपली कैटेगरी बनली. दीज आर द सिंपल स्टेप्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैटेगरी. अभी यही से मैं अगर जाती हूँ क्रिएट न्यू कोर्स, ये पेज में आगे अभी अपन जो पेज अपन बहुत एक्सप्लेन कर रहे थे, यहाँ पे अभी मैं समझने के लिए डेमो कोर्स. ठीक है, कोर्स का शॉर्ट नेम DC. ये कोर्स किन बच्चों के लिए मुझे लेना है, MSc सेम 2, तो आई विल क्लिक MSc सेम 2. फिर मैंने बताया था कोर्स विजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट क्या रहती है, शो, उसको हाइड मत करिए. मैं इसको एज इट इज रहने देती हूँ कि ये स्टार्ट डेट 6 अगस्त 21 से लेके 6 अगस्त 22 तक है. आप लोग अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से डेट सिलेक्ट करिए, मंथ सिलेक्ट करिए, ईयर किती वाजून किती मिनिटांनी चालू होईल बंद होईल वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं. अभी ये वाला बॉक्स इम्पॉर्टंट है. कोणता बॉक्स आहे हा, समरी. कोर्स समरीचा बॉक्स आहे. कोर्स समरी मध्ये हे तुम्ही ना लिहून घ्या पटापट काय काय तुम्हाला एक्सपेक्टेड आहे मला तुमच्याकडनं. नेम ऑफ द कोर्स असायला पाहिजे, याच्यावरती मार्क्स आहे हा तुम्ही जे सबमिशन्स कराल. नेम ऑफ द टीचर मी तुमच्या सोबत सांगते पण आहे. टाइप ऑफ द कोर्स, टाइप ऑफ द कोर्स का मतलब समझ में आ गया. आप जो पेपर पढ़ा रहे हैं ये फाउंडेशन कोर्स है कि क्या है, दैट यू हैव टू मेंशन. देन किती क्रेडिटचा आहे जर तुम्हाला माहिती असेल तुमच्या सिलेबसमधनं. देन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द कोर्स. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मध्ये तुमचं सिलेबस तुम्ही बघाल आणि त्याच्यामध्ये युनिट 1, युनिट 2, युनिट 3, युनिट 4, देन हे असं, येस, असं ब्लँक नाही ठेवायचं तुम्हाला. तुम्ही लिहा याच्या पुढे तुम्हाला जे पण लिहायचं असेल
सबमिशनच्या पहिले हे कंप्लीट कराल. इस कंप्लीट युनिट के बारे में आपको लिखना है. देन सजेस्टेड रीडिंग्स किंवा रेफरन्स बुकची नावं तुम्हाला काही द्यायची असेल, नेम ऑफ द बुक यू हॅव टू ॲड हिअर. आता मी पूर्ण नाही लिहून दाखवत. देन तुम्ही इव्हॅल्युएट किंवा असेस कसं करणार आहे पोरांना, इव्हॅल्युएशन, उसके बारे में आप जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो आप दे दीजिएगा. हे मी रफ मध्ये सांगते हैं. फिर इसको आपको बोल्ड जो भी चीज़ें करनी है आप लोग यहाँ से कर दीजिए. बोल्ड हो गया. फिर आपको कोर्स का नाम अगर इटैलिक्स में करना है तो करिए. वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग यू कैन डू. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपन ने क्या पढ़ी थी, ये हो गई मेरी समरी पूरा लिख के हो गई है. उसके बाद अपन क्या करेंगे फटाफट. वीडियो HTML में सिलेक्ट करेंगे. Select the summary. अभी अपन वीडियो वाले स्टेप्स में जा रहे हैं. ठीक है, तो मैं मीनवाइल इसको क्या करके रखूंगी, पहले HTML में कन्वर्ट. सिलेक्ट करायचं है, लेफ्ट माउस क्लिक से सिलेक्ट. अभी मैंने देखिए जब मैंने पीपीटी बनाया था तब वहां पे वो उल्टा एरो था डाउनवर्ड वाला. अभी यहाँ पे कुछ अलग ही टैब दिख रहा है. तो ये हमेशा अपडेट होते रहता है, तो आप ध्यान में रखिए. यहाँ पे अभी ऐसे दिख रहा है टूल बार टॉगल नाम से. तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना और एक टैब ओपन हो जाएगा. अभी मैं आपको और बताऊंगी कि ये बीच की स्ट्रिप कैसे आई है कलर कॉम्बिनेशन वाली, वो अपन लास्ट में देखेंगे कल. ये एडवांस ऑप्शन में जाता है. तो यहाँ से आपको कौन सा वाला टैब सिलेक्ट करना है. HTML. HTML दिख रहा है क्या, कहीं पे है क्या. सी आर यू गेटिंग. जब मैंने पीपीटी बनाया था तब आपको ये कॉर्नर पे कहीं तो भी दिख रहा है. तो अभी यहीं पे मत सर्च करिए कि मॅडम ने तो इथेच सांगितलं होतं. ऐसा नहीं है, अभी ये यहाँ पे आ गया है. दिस क्रॉस एरोज फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, दिस इज HTML फॉर्मेट. सब लोगों को दिख रहा है. आर यू विथ मी. Yes, ma'am. यस ma'am. यस ओके. चलिए जैसे मैं इसको HTML में क्लिक करती हूँ, हाँ अभी देखिए ये चेंजेस आ गए हैं. पीपीटी में कुछ स्क्रीनशॉट्स अलग थे. जैसे ही आप HTML में क्लिक कर रहे हैं एक नई विंडो उसके ऊपर ओपन हो गई है. अभी मुझे ये अपनी कोर्स समरी है. यहाँ पे आप लोगों को डिसाइड करना है कि जो मैं वीडियो लाऊंगी यूट्यूब में से ये समरी के ऊपर बच्चों को दिखना है कि समरी के नीचे, कहाँ पे आपको शो करना है. आप लोग मुझे बताइए प्रैक्टिस के लिए. एट द टॉप. एट द टॉप. अभी कर्सर कहाँ पे है मेरा, एट द एंड. नाउ यू हैव टू माउस क्लिक हियर. यस, उसके बाद एंटर दबा के ठीक भी है, नीचे इसके बाद एंटर कर दीजिए, मतलब थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी. अभी मेरा कर्सर में फिर से ऊपर ले जा रही हूँ, मैंने लेफ्ट माउस क्लिक किया है. गॉट इट. यहाँ तक कुछ डाउट है. नो मैम. No, ma'am. ठीक आहे. आता काय करायचं, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट टैब, न्यू टैब. ठीक है, ये मैंने ऐसे ही रहने दिया है मूडल का पेज. आई एम ओपनिंग न्यू टैब. इन न्यू टैब आई एम एडिंग youtube.com. youtube.com में जो भी नाम से, हाँ जब आप YouTube में सेव करेंगे ना फ्रेंड्स तो बराबर देखिए आपको वीडियो में मैंने दिया है कि वीडियो का नाम क्या रहेगा, उसका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, वो हमेशा याद रखना. क्योंकि ना वो सर्च करते समय अपने को अपन भूल जाते हैं कि किस नाम से अपन ने सेव किया था. जैसे मैंने मेरा नाम डाला तो जो भी मेरे नाम से YouTube में वीडियो सेव होंगे वो सेव किए हैं वो पूरे यहाँ पे शो होंगे. सपोज मैं ये ले रही हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनोलॉजी. इफ दिस इज योर डिजायर्ड वीडियो, सो क्या करेंगे अभी यहाँ पे बताइए, रिवाइज करिए फटाफट. पॉज करेंगे वीडियो को. Right click on the पहले ओपन, पहले Yes. ओपन. ठीक है, Open. पहले उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, मतलब वो बड़े स्क्रीन में आएगा. डायरेक्ट तिथे राईट क्लिक कराल ना तेव्हा वेगळे ऑप्शन्स येतील. तो पहले उसको ओपन करेंगे फिर पॉज करेंगे. फिर पॉज करेंगे. पॉज करने के बाद अभी क्या करूं, राइट क्लिक, राइट क्लिक ऑन द वीडियो. Right click. बरोबर. आता कॉपी एम्बेडेड कोड. कॉपी एम्बेड कोड. ये लू क्या, सेकंड वाला. नो मैम. नो. No, ma'am. नो नो. बहुत number. बार बच्चे मतलब पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं URL ले लेते हैं और वहां पे शो ही नहीं होता. तो हमेशा याद रखना ये HTML सिंबल ही अपने को चाहिए, तो ये वाला लेना, कॉपी एम्बेड कोड. अभी अपना जो कोड है वो मेरे लेफ्ट माउस क्लिक में है. नाउ यू गो बैक टू योर मूडल साइट.
and paste here. कंट्रोल वी से भी पेस्ट कर यस, सकते हैं ना? कंट्रोल वी भी करिए या तो सिंपल राईट क्लिक करके पेस्ट. अभी देखिए हे सगळं ना असं डोळ्यांना खूप असं फिरल्यासारखं होत आहे. तो हमेशा याद रखना वीडियो का जो कोड है वो ये वर्ड से चालू होता है आई फ्रेम एंड एंड ऑन आई फ्रेम. फ्रेम में. ठीक है, आई फ्रेम से शुरुआत होके आई फ्रेम पे एंड होना है. तो ये अपना वीडियो का यूआरएल है. ये मैं इसलिए बता रही हूं कि अगर आगे जाके आपको एग्जिस्टिंग वीडियो को हटा के दूसरा कोई वीडियो ऐड करना है तो ये कोर्स समरी को HTML में कन्वर्ट करके ये वीडियो की जो मैंने कोड लाया था इसको डिलीट करना है आगे, अगर जब आपको एडिटिंग करना है उस वक्त. ठीक है, तो हमेशा याद रखना वीडियो का कोड कहाँ से कहाँ तक रहता है, आई फ्रेम से लेके आई फ्रेम तक रहता है वो. ये आ गया अपना वीडियो का कोड. नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अपडेट. ये देखिए ये डायरेक्टली आ गया है, डायरेक्ट वीडियो वाला, और उस वीडियो के नीचे आ गई समरी. गॉट इट? यस. सगळ्यांना समजलं आहे का व्यवस्थित? हो मॅम. ठीक आहे, बाकी पार्टिसिपंट्स डोक्यावरनं गेलं असेल तर मला विचारा, मी परत एकदा करून दाखवते. पण हे सगळ्यांना कंपल्सरी आहे, करायचंच आहे आज. नाही मॅडम प्लीज समजलं? एकदा रिपीट करा ना. एकदा रिपीट करू. आता बघा, रिपीट करतानाच मी सांगते कि तो वीडियो डिलीट कसा करायचा. ठीक है, तो वो भी स्टेप्स आप लोगों की हो जाएगी. काय करू आता मी याला HTML मध्ये पहिले कन्वर्ट करायचं. अभी फिर से रिपीट करने के लिए पहले मुझे ये वीडियो को डिलीट करना होगा. आप लोग में से कोई बता सकता है हाउ टू डिलीट द वीडियो एंड फ्रॉम वेयर टू वेयर? मैम आई फ्रेम. Yes, it Frame is to starting iframe. from this iframe to iframe. Got it? Now Yes. delete from the keyboard. Delete from the keyboard. आता बघा मी डिलीट केला व्हिडिओ आणि अपडेट करते आहे. चला गया मेरे कोर्स समरी में से व्हिडिओ. ठीक आहे, आता मी परत कसं ऍड करायचं सांगते. काही लोकांचं जर मिस झालं असेल तर प्लीज एकदा बघून घ्या. व्हॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू, पहले कैसा रहते इस तरीके से रहेगा ये सारी बटन्स. आपको ये टूल बार टॉगल पे जाना होगा, देन क्लिक ऑन HTML. देन अगर नीचे वीडियो चाहिए, अभी अपन सेकंड टाइम नीचे वीडियो ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ. नाउ यू गो टू यूट्यूब. यूट्यूब मध्ये माहिती आहे तुम्हाला व्हिडिओ सर्च करायचा, व्हिडिओ ओपन करायचा, राईट क्लिक करायचं, फोर्थ ऑप्शन कॉपी एम्बेड कोड, गो टू मूडल साइट अँड कंट्रोल V. पेस्ट केला आई फ्रेम टू आई फ्रेम. ठीक है, नेक्स्ट घ्यायचं खाली अपडेट. अभी देखिए वीडियो आ गया है कि अपना समरी के नीचे देख लेते. आ गया अपना वीडियो. समझ लो? यस. ठीक है, रिवीजन हो गई एक बार, आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर अभी अपन उसी पेज में हैं. अभी क्या करते हैं, अभी अपन कोर्स फॉर्मेट. कोर्स फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है, टॉपिक्स फॉर्मेट. अगर नहीं है तो ये ड्रॉप डाउन में जाके आप टॉपिक फॉर्मेट करिए. नंबर ऑफ सेक्शंस, आपके केस में कितने यूनिट्स हैं वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करिए. फॉर एग्जाम्पल 4 यूनिट्स आहे. बाकी कहीं पे भी चेंजेस मत करिए. सेव एंड रिटर्न. सेव एंड रिटर्न. अभी देखिए यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक बताया था कहीं पे भी गुम हो जाते हैं तो कौन से टैब पे क्लिक करना है, साइट होम. साइट होम. साइट होम. ठीक है, अभी अपन साइट होम में आगे देखते हैं अपना डेमो कोर्स दिखता है क्या. ये देखिए, ये तो आप हमेशा देखते हैं रिफ्रेशर कोर्स इन IT अवेयरनेस. ये तो अपना ही कोर्स है, प्री PhD कोर्स फॉर फैकल्टी इंडक्शन. ये तो है. ये देखिए आ गया अपना डेमो कोर्स. अभी आप जो साइट बनाएंगे फ्रेंड्स उसमें आपको वही कोर्स दिखेगा जो आप लोगों ने बनाया है, क्योंकि ऑलरेडी तो आपने इसके पहले कोई कोर्सेस नहीं बनाए हैं. तो आपको अपने कोर्स का नाम दिखेगा, उससे रिलेटेड समरी दिखेगी, और आपने जो वीडियो बनाया है कोर्स समरी का वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा बच्चों को भी. अभी
अगर मैं ये कोर्स पे क्लिक करती हूँ, आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट कोर्स देयर इज नथिंग. समज में आ रहा है क्या? कोर्स बनला म्हणजे संपलं का आपलं काम? आता कोर्सच्या आतमध्ये आपण गेलो आहे. कुछ है क्या वहां पे बच्चों को देखने के लिए? कुछ रीडिंग मटेरियल वगैरह है क्या? क्योंकि अभी तक मैंने कोर्स को डिजाइन नहीं किया है, कंटेंट एडिशन कुछ भी नहीं करी है. ठीक है, तो यहां तक आपको स्टेप समझ में आ गई? समझ में आ गई कि सबको? यस यस मैम. Yes. अभी देखिए. यस, काही विचारायचंय कोणाला? देखिए, नाउ आई एम लॉग आउट. नाउ सी द डिफरन्स. आता मी लॉग आउट केलं आहे फ्रेंड्स. लॉग आउट केल्यानंतर मला कोणते कोणते कोर्सेस दिसतात. ये देख रहे हो आप लोग, रिफ्रेशर कोर्स इन आईटी अवेयरनेस. उसके लाइन में जहां पे मेरा एरो जा रहा है वहां पे देखिए हे काय दिसत आहे? लॉक आहे ते. एक लॉक आहे, पण ते लॉक कसं आहे थोडं अजून व्यवस्थित बघा. अनलॉक आहे अनलॉक. अनलॉक म्हणजे ओपन आहे ते. Open आहे ते. हाँ, इसका मतलब क्या होगा? आपको थोड़ा सा विचार करा काय असेल. लॉक ओपन आहे. एडिटिंग करता येईल त्याच्यात, म्हणजे ऍक्सेस करता येईल. एक्सेस करता येईल. गेस्ट एक्सेस. ठीक है, अभी देखिए मैं लॉग इन नहीं हूं, फिर भी मैं ये कोर्स पे अगर क्लिक करती हूं अपने आईटी अवेयरनेस के, लॉग इन एज गेस्ट, तो मैं ये कोर्स के अंदर के कंटेंट सारे देख सकती हूँ जो भी मैंने आपको प्रोवाइड किए थे. बट अगर मैं किसी क्विज पे क्लिक करूंगी तो क्या बोल रहा है ये? रीड करिए आप लोग. Sorry, Sorry, guest guest cannot see or attempt quizzes. Would you Would you like like to to log in now with the log full? in? Are you getting the difference? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है, मतलब गेस्ट लॉगिन भले ही मैंने अपने कोर्स को दिया है, बट वो कोर्स जो कोई भी देखना चाहता है वो सिर्फ देख कर सकता है, बट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गेस्ट लॉगिन एंड यूजर आईडी एंड पासवर्ड गिविंग. नाउ सी, इफ आई गो बैक टू साइट होम एंड सी अवर डेमो कोर्स, वहां पे वो लॉक है क्या अपन देखते हैं. ये देखिए ये लॉक यहाँ पे है, मतलब मैंने इसको गेस्ट एक्सेस दिया है. अभी अपन नीचे जाते हैं. ये कोर्स अभी अपन ने बनाया था ना, डेमो कोर्स, यहाँ पे है क्या वो लॉक? No, ma'am. मतलब ये कोर्स को मैंने गेस्ट लॉगिन नहीं दिया है. तो ऐसे कोर्स को जिसको गेस्ट लॉगिन नहीं है उसके ऊपर अगर मैं क्लिक भी करती हूँ ना, तो मुझे सिर्फ इतनी ही चीजें दिखेगी, सिर्फ समरी दिखेगी और सिर्फ वीडियो दिखेगा. अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं डेमो कोर्स पे क्लिक करती हूँ, ये देखो कितना भी क्लिक कर लो अपने को सिर्फ क्या दिख रहा है? समरी और वीडियो. नीचे देखो, रीड करो ये क्या दिया है. Guests cannot access this course. Please log in. यस, आर यू गेटिंग? क्योंकि मैंने इस कोर्स को गेस्ट लॉगिन दिया ही नहीं है. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? समझ में आ गया? तो अभी अपन थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 2-5 मिनट का. मैं पानी पी लेती हूँ एंड देन वी विल मूव ऑन टू हाउ टू गिव गेस्ट एक्सेस टू द कोर्स एंड देन वी विल डिजाइन द कोर्स बाय एडिंग कंटेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट, जितना भी होता है आज. ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो. देन मॅडम 10 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ का? थोडं जेवून घेता येईल थोडं. बरं सर, नंतर तुम्ही फ्री होणार आहे सर 12:30 पाऊंडला फ्री होऊन जाल. बरं बरं ठीक आहे. बघा तुम्ही जॉईन करायचा प्रयत्न करा, काही प्रॉब्लेम नाही. हा